پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے جی چینی کونسلر جنرل کا یہ بیان ہم نے شامل کیا کونسلر کا کہ پاکستان میں مستقل معاشی پالیسیاں نہیں ہیں. ناشتے کی پالیسی لنچ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ اس وقت میں کہا گیا ہے جب سی پیک کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں وزیر خزانہ سابق وزیر خزانہ اب تو ہو گئے حفیظ شیخ صاحب, ان کو ہٹایا گیا. اور میں اس لیے جاننا یہی چاہتا ہوں کہ جناب اس طرح کی باتیں اب چینی کونسل جنرل نے کرنا شروع کر دی ہے. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت سے تجارت کی ایک دن بات کی جاتی ہے, اعلان کر دیا جاتا ہے اور دوسرے دن فیصلہ حکومت واپس لے لیتی ہے. یہ حکومتی بوکھلاہٹ ہے یا کیا یہ تماشا ہے؟ فاروق راٹھی صاحب کیا کہیں گے اس سارے چیز کو آپ دیکھتے ہوئے؟ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف ہم بھارت سے اعلان کر دیتے ہیں کھڑے ہو کے جی تجارت کر رہے ہیں, چینی منگائیں گے, کپاس خریدیں گے, اور دوسرے دن فیصلہ واپس ہو جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا اور تائیوان کے درمیان بھی دشمنی, جرمنی فرانس کے اندر بھی دشمنی, یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت سارے ملکوں میں ہوئے, برسرے پکار تھے بالکل, لیکن ان میں تجارت چلتی رہی ہے اور تجارت کے طور پہ کبھی بھی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس خطے میں ہم اگر ایک قدم آگے چلتے ہیں تو ہمیں دھکا مار کے پیچھے 4 قدم کر دیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جنرل نواز شریف کے دور میں 700+ آئٹم کی لسٹیں وہ تھی جو ہم انڈیا سے امپورٹ کر سکتے ہیں, جبکہ انڈیا ہمارے صرف 50 یا 52 آئٹم ہی لیتا تھا. یا تو برابری کی بنیاد پہ ہو, یہ نہ ہو کہ ان کے 700 آئٹم ہم لا سکتے ہیں اور وہ ہمارے سے 50 آئٹم ہی لیں گے. ایسا نہیں ہوتا, ہو تو پھر برابر کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس وقت کیونکہ ہماری حکومت نے یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 370 جب تک انڈیا وڈرا نہیں کرے گا. نہیں, میں اس پہ آ رہا ہوں, آپ کی بات درست ہے کہ 370 اور 35A کی ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے, لیکن اس کو کیا کہیں گے آپ جناب کہ ایک دن ہم تجارت کا اعلان کر دیتے ہیں اگلے دن واپس لے لیتے ہیں؟ یہ حکومتی بوکھلاہٹ ہے, سوچ سمجھ کے فیصلے نہیں ہو رہے. نہیں کہوں گا میں بوکھلاہٹ نہیں کہوں گا. دیکھیے ہمارے ہاں حکومت میں اس طرح تو نہیں کوئی بھی وزیر کھڑا ہو کے اعلان کر دے کہ جی آج سے ہم جی 12 سے تجارت کریں گے اور اگلے دن کابینہ کہے کہ جی نہیں کریں گے. دیکھیے کچھ مجبوریاں ہماری ہے جو کہ حقائق کو دیکھو گے تو مشاورت تو ہونی چاہیے. آپ کی غربت کی لکیر کے نیچے میجورٹی آف پیپل دے آر لیونگ. پاکستان میں سر 60% سے زائد خطے غربت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, اور انڈیا میں بھی رہنے والے وہ بھی تو انسان ہیں. وہ بھی بالکل ہم تو یہ کب تک, ہمیں تو چاہیے کہ یہ چیزیں ایمیکیبلی ریزالو ہونی چاہیے. نہ پاکستانی عوام انڈیا کی عوام کے خلاف ہے, نہ انڈیا کی عوام پاکستانی عوام کے خلاف ہے. یہ بین الاقوامی جو سازشیں ہیں انہوں نے ہم کو اسلحہ کی منڈی بنایا ہوا ہے, ہم ان کے بائر بناتے ہیں اور غریب ملکوں میں بیچتے ہیں, لڑاتے ہیں آپس میں. اچھا میں ایک اور بات ہے معیشت پہ میں چاہتا ہوں تھوڑا اس طرف ہی آتے ہیں ہم دوبارہ کشمیر کی طرف بھی, کہ سر یہ بتائیے افراد کی تبدیلی سے معیشت پہ کوئی فرق پڑے گا یا پالیسی تبدیل کرنی پڑیں گی آپ کو, تب جا کے مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی اور معیشت آپ کے پاؤں پہ کھڑی ہوگی؟ دیکھیں حفیظ شیخ کی جگہ حماد اظہر کا فیصلہ آپ کیا کہتے ہیں, اچھا فیصلہ ہے, برا فیصلہ ہے, یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں تھوڑا پیچھے جاؤں گا. جب عمران خان کی حکومت آئی تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیسے کو آرٹیفیشلی روکا ہوا تھا, ایک مصنوعی طور پہ ڈالر کو بھی روکا. نون لیگ کی حکومت میں 60 کی بات کر رہے ہیں جناب, اور اس روکنے کی وجہ سے عوام کو بڑے فائدے تھے سر, مہنگائی نہیں وہ وقتی فائدہ تھا. آپ لانگ رن میں دیکھیں نا, جب یہ آئے تو اس وقت ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں تھا کہ آپ کرنسی کو, اپنے پیسے کو آپ اوپن کریں. اس کا اوپن کرنے کا یہ ہوا کہ 110 سے وہ 168-69 روپے پہ ڈالر چلا گیا. مہنگائی جو بڑھی ہے اس میں اس حکومت کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. کس کا لینا دینا ہے پھر؟ یہ کیا میں بتا رہا ہوں, جو پیچھے جو پالیسیز تھی اسحاق ڈار نے 3 سال بعد بھی آپ گورنمنٹ والی بات کر رہے ہیں کہ عوام یہ کہہ رہے ہیں سر کہ چینی ہمیں 55 روپے مل رہی تھی, ہمیں آٹا چینی دال سب چیزیں سبزیاں سستی ملتی تھی, اب ڈبل ہو گئی ہیں. سر آپ نے بل 2500 آتا تھا 5000 آ رہا ہے, آپ کہیں کہ جی روکا ہوا تھا. اچھا اب آپ اس کی میں آپ کو ریزن دیتا ہوں. جب مشرف حکومت چھوڑ کے گئے انہوں نے 6 بلین یا 5 بلین ڈالر کا قرضہ آئی ایم ایف کو واپس دے کے آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نکلے.
जब वो गए तो 34 अरब डॉलर का कर्जा पाकिस्तान पे था। जब ये दो हुकूमतों ने 5-5 साल किए, 10 साल के अंदर 34 अरब से कर्जा 94 बिलियन डॉलर तक ये दोनों ले गए। इन्होंने किया क्या है? इन्होंने वर्ल्ड बैंक और IMF से पैसे लिए हैं और हुकूमतें चलाई हैं और पाकिस्तान को कर्जे में डबोते गए हैं। तो सर कर्जे तो ये गवर्नमेंट भी बहुत ले रही है। मैं आप 24 अरब 24,000 ये तो ओपन फैक्ट। 34,000 अब आपके पास 100 अरब रुपए का अगर कर्जा होगा तो वो उस कर्जे की आपको वो सूद की बदले में भी तो आपको पैसे देने तो अदायगियां करने के लिए मजीद कर्जा लेंगे आप? नहीं, कर्जा क्यों लेंगे? देखिए आपकी सारी इंडस्ट्री तबाह कर दी इन्होंने। वजह ये आप डेफिसिट देखें कि कहाँ आपकी 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी। आप एक्सपोर्ट में फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, तो 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट गिरते गिरते 18 बिलियन डॉलर पे आ जाए और आपकी इंपोर्ट जो वो 60 बिलियन डॉलर पे चला जाए, यानी कि आपका जो डेफिसिट 42% किसको कहते हैं? यानी कि 42 बिलियन। तो ये जो 42 बिलियन डॉलर का जो डेफिसिट था, ये कहां से आप पूरा करोगे? अब ये बताइए, 3.25 साल गुजर चुके हैं, आपने कहा जी मसनूई तौर पर डॉलर को रोका हुआ था, महंगाई को रोका हुआ था नून लीग ने, अवाम की बहरहाल फायदे में जारी सारी चीजें। 3.25 साल बाद ये अवाम को समझाने की कोशिश आप कर रहे हैं कि वो मसनूई तौर पर रोका हुआ था, हमने की ओपन कर दिया है। सर आपके पास 2 साल तो रह गए हैं, इसमें क्या कर मेरे पास नहीं, आप सुने, मैं यहाँ कुछ स्पोक्समैन नहीं हूँ, आप ना बने, लेकिन पॉलिसी को दिफा कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे यह सवाल पूछा। 2 साल में आपको वैसे एक, मैं इस तरफ आ जाए ना सर, एक मईशत दान के तौर पे अगर बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो 2 साल में आपको क्या लग रहा है कि कोई जादू की छड़ी हमारा दर्स आपके पास कि वो मईशत दुरुस्त कर देंगे, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए, हमाद अजहर ने तो उसी पॉलिसी का तसलसल को जारी रखना है। अब आपने देखा कि जब आपका रुपया इस वक्त इतना स्ट्रांग हो गया कि अब आपने आर्टिफिशियली उसको रोका हुआ गिरने से, ताकि आपकी एक्सपोर्ट पे असर अंदाज ना हो। आज एक्सपोर्टर्स चिल्ला उठेंगे कि भैया आज अगर आपने छोड़ दिया तो ये आपका डॉलर जो है ना 140 से भी नीचे आ जाएगा। लेकिन क्योंकि एक्सपोर्टर्स की कमिटमेंट्स हैं, उसकी वजह से हुकूमत ने इसको कंट्रोल किया हुआ, आपका पैसा स्ट्रांग हो रहा है, आप टेक्सटाइल आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, आपकी जो ओवरसीज पाकिस्तानी का आप पे जो एतमाद है, 23.5 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आपकी हो जाएगी ओवरसीज पाकिस्तानी से। आपके पास इस वक्त इतने ऑर्डर्स हैं टेक्सटाइल वगैरह के लिए, लेकिन आपके पास वो मशीनरी नहीं, वो फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है। तो इस वक्त नई नई फैक्ट्रियां भी आ रही है, नई नई मशीनरी भी इंपोर्ट हो रही है। और इसकी वजह बताता हूँ, अभी मैं बैठा हुआ था एक जगह, वहाँ पे मुझे ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा कि फारूक भाई आप टॉक शोज में जा रहे हैं तो एक मैसेज हमारा जरूर कीजिए। बोला इस वक्त आप एक्सपोर्ट को छोड़ें, लोकल इंडस्ट्री हमारी जो टेक्सटाइल की इतनी बूम हो गई है कि हमारे पास इतने ऑर्डर है कि हम पूरे नहीं कर पाते। तो मैंने कहा तो पहले क्यों नहीं था? बोला पहले ये था कि इंडिया से स्मगल होके कपड़ा आता था, वो बहुत सस्ता पड़ता था, तो उसको हम कंपीट नहीं कर पाते थे और वो कपड़ा हमारी मार्केट में एक्सेस होकर हमारी इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया था। तो आप अपने इस टॉक शो में, इस वीनस टीवी के चैनल के तवस्सुस से ये हुकूमत को बावर कराएं कि इस पॉलिसीज को आप कंटिन्यू रखें और इस तरह की कोई भी चीज़ की इंपोर्ट की इजाज़त ना दें जिससे कि आपकी लोकल इंडस्ट्रीज इफेक्ट होती हो और वो ज़ाया हो। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी चीज़ है। और देखें, ये नहीं है, हम अब इस हुकूमत ने जो इक़दाम किए अब उसके नताइज आना शुरू हुए हैं। आप देखें कि पहले डैम्स अयूब खान के बाद एक भी डैम नहीं बना, अभी 8 डैम जोर शोर से बनने और एक डैम तो 2025 में तैयार हो जाएगा। एक चीफ जस्टिस साहब भी डैम की रखवाली कर रहे थे, वो भी चले गए बाहर, वो डैम का काम भी रुका हुआ है। देखिए मैं आपके नहीं, किसी भी डैम का काम नहीं रुका हुआ है। और कब बनेंगे सर वो डैम, कब तक बन जाएंगे? देखिए अरे की अगले 10 साल में, इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट डैम, मोहम्मद डैम या कौन सा मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इस पर, 25 में तो ये गवर्नमेंट नहीं होगी ना? नहीं ये हो नहीं, गवर्नमेंट चाहे पीटीआई की हो या ना हो, तो पीटीआई वालों से ये नहीं पूछा जाएगा 5 साल बाद कि भाई आप करके क्या जा रहे हैं? आप कहेंगे जी हमने मुस्तकबिल के लिए बहुत काम कर दिए, 2-4 साल 5 साल बाद पता चलेगा आपको। नहीं, देखिए बात यह है कि पूरा निज़ाम गड़बड़ हुआ है। आप अगर मुझे माजरत के साथ मैं कहूँगा
जुडिशरी में आप अगर देखें, ब्यूरोक्रेसी में देखें, एफबीआर में देखें, या मकसद हर जगह इलेक्शन कमीशन देखें। डॉक्टर साहब ये तो वो जवाब हैं जो पीटीआई वाले रोजाना मुख्तलिफ टॉक शो में पेश कर रहे होते हैं। पीटीआई वाले तीन साल बाद भी आज हम खड़े होकर बात कर रहे हैं कि जी हमारा नजर आ गया है, उसके बाद जादू की छड़ी है, शायद वो सही कर देगा। आपने कहा जी पॉलिसीज अब बेहतर हो रही हैं, पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा काम भी आ गया, लेकिन अवाम के जो हकीकी मसाइल हैं फारूक राठी साहब, वो सबसे बड़ा मसला है महंगाई का और गुर्बत का। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा बल्कि बढ़ गया है। मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूं आपके साथ ताकि लोगों से शेयर भी करूं आप लोगों के साथ। रजा बाकर साहब गवर्नर स्टेट बैंक हैं, स्टेट बैंक की तरफ भी हम आते हैं कि हुआ क्या है, असल कहानी क्या है, डैडी साहब भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। रजा बाकर साहब इससे पहले रोमानिया और मिस्र में रहे हैं IMF के नुमाइंदे के तौर पर, और रोमानिया में वो थे तो जब GDP उनकी 5.8 थी, तो वापस जब छोड़कर वहां से इतनी दिन रात उन्होंने मेहनत की कि जब 0.2 हो गई तो वहां से चले गए। फिर ये मिस्र भेजे गए और वहां भी 5.3 या 4 थी, जब 0 पॉइंट समथिंग हो गई तो वहां से भी चलते बने। और पाकिस्तान आए हैं तो पाकिस्तान की GDP भी 5+ थी और अब कहाँ पहुंच चुकी है, माइनस में। तो ये रजा बाकर साहब इतने जीनियस आदमी हैं, और हफीज शेख साहब इससे भी ज़्यादा जीनियस आदमी है कि उन्होंने पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है उनका, एक सहाफ़ी के घर पे 2-2.5 साल का अरसा उन्होंने गुजार दिया, वहीं खाना खाया करते थे, वहीं पानी पिया करते थे, और अब वापस चले जाएंगे। IMF की नौकरी अभी भी चल रही है उनकी। जी सर। देखिए, अब आप जो 5% GDP की बात कर रहे हैं, आ जाता हूँ मैं इसहाक डार की तरफ। इसहाक डार ने, और मैंने कहा इन हुकूमतों ने क्या किया, इन्होंने IMF वर्ल्ड बैंक से धड़ाधड़ कर्जे लिए हैं, और लोगों ने भी बिल्कुल देते रहे हैं। उसकी वजह थी, वो उसकी वजह एक अलग है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को आपको डिफॉल्ट करके आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो ये भी एक थ्योरी है सर। अच्छा, इसहाक डार ने क्या किया है कि यहाँ पे आर्टिफिशियली पैसों को रोका, धड़ाधड़ नोटें छापते रहे स्टेट बैंक से, और वो पैसा उन्होंने मार्केट में फ्लोट किया। आप नोट भी नहीं छाप सकेंगे अगर बैंक आपने दे दिया है तो यार, ये वो स्टेट बैंक अगर आप उसको खुद मुख्तारी देते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कौन सी खुद मुख्तारी है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2021 के जरिए गवर्नर स्टेट बैंक को फाइनेंशियल वाइसराय बनाया जा रहा है। नहीं, देखिए मैं देखा जवाब साहब के इदारे को भी जवाब देने रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात एक छोटी सी बात शेयर करूं आपसे कि सदर को, वज़ीर आज़म को, दीगर लोगों को एहतसाब के इदारे बुला सकते हैं। इस एक्ट के बाद फिर गवर्नर स्टेट बैंक, डिप्टी गवर्नर्स किसी को नहीं है बुला सकेंगे, ये इख्तियार भी चला जाएगा आपसे। एक छोटा सा ब्रेक ले लो, फारूक राठी साहब इस पर राय पूछेंगे कि स्टेट बैंक में हो क्या रहा है आखिर ये, और पस पर्दा मजीद क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, इससे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, इस पर हम बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं भी जाइएगा, हमारे साथ रहिए।